And this is organized. Yeah, so this has been conducted by Nikunj Agarwal. He's a practicing CA. It's been organized by Strategy One, and we have guests from Market Star and Get Set Delgo. You know all of these guys. We are basically trying to educate the broader audience on taxation and F&O. So I'll ask Nikunj to start. Anyone has any question, they could use the chat box, or they can also send messages on the chat. Hello everyone, and thanks Strategy One for giving this platform to say something about F&O taxation, where people are being confused relating to some aspects. Let's start. First, a brief about myself. I have been practicing CA from 2019, and from 2 to 3 years, I have been actively providing income tax related services to traders all across India. That's a bit. Let's go forward. These are some of the taxation related to share market. First, I will brief out. There are two types of taxation. First is the business income, and the second is the capital gain income. The business income includes the F&O income and the equity intraday, stock intraday, which we do, which we square off around 320 to 330. And the other one is the long-term capital gain and the short-term capital gain, which comes under the capital gain head. So these are some of the taxation related tax rate that you can see. Equity stock intraday is called as a speculative business, and it is taxed at a rate of 30%. Non-speculative business, that means the F&O trading, whether it is intraday or carry forward, all comes under non-speculative business, and it is also taxed at the rate 30%. Then comes the long-term capital gain. Long-term capital gain means if the holding period of the equity share is more than 12 months, then tax will be at the rate of 10% of profit in excess of 1 lakh. That means if you have earned a profit of 1,50,000 as a long-term capital gain, then 10% of 50,000 will only be taxable. 1 lakh is exempt for long-term capital gain taxation. Then comes a short-term capital gain, which means if the holding period is less than or equal to 12 months, it is taxed at a rate of 15%. I think all should know about it. Any questions? Hello? Hello? Nikunj, so far no questions came. We can proceed. Okay. So for this purpose, I've divided a business income into two parts: non-speculative and speculative. Non-speculative means the F&O trading. It has been divided into three parts. If the turnover is less than 1 crore, turnover more than 1 crore but up to 10 crores, and turnover more than 10 crores. This will mainly be used for the requirement of tax audit and all. First, let us understand the tax audit part, which is the most questionable part from the traders. This is the tax audit requirement. Mainly the audit is required if the turnover is more than 1 crore. But the new finance minister Nirmala Sitharaman ji introduced a clause in it that if the turnover is up to 10 crores, then no audit will be required if the cash receipt and cash payment does not exceed 5% of total receipt. For example,
If the turnover is 2 crores and the cash payments or the cash receipt is less than 5%, then the audit requirement becomes 10 crores and not 1 crore. To summarize this all, I have made a summary of it. It's mainly the tax audit requirement. It is from my advice point of view. If you are doing F&O trading, audit is compulsory if turnover is more than 10 crores. But if the turnover is less than 2 crore, there comes a two case scenario. If you are in a loss, if you are in a profit. If you are in a loss, my advice is to go for audit if turnover is more than 1 crore, because the assessing officer and all will cross question you if you are booking a loss and your turnover is more than 1 crore. This is my practical advice, to go for audit if turnover is more than 1 crore. But if turnover is less than 1 crore, there is no audit requirement whatsoever. Just prepare the balance sheet and the profit and loss account for the F&O income and file a normal ITR 3. Nikunj, sorry to stop you, but Yes, people are asking about what is turnover, because after knowing what is turnover, then only they can proceed with these clauses. Okay, no problem. Just let me give some time. Is the Excel sheet visible? Yes. Okay. Let us take two cases, in case of futures and in case of options. For example, you bought Bank Nifty for 35,000 and sold it of around 36,000. This is the case 1. Case 2, bought it at 35,000, sold it at 34,000. Profit or loss? In this case, you have a profit of 1,000. In the second case, you have a profit or loss of 1,000 rupees. So to calculate the turnover, we have to calculate the absolute value. That means in the profit and loss, we have to ignore the minus sign in it. For example, in the case 1, your absolute value is 1,000 and your turnover is also 1,000. But in the second case, you have a loss of 1,000, but the absolute value is 1,000 and the turnover is also equal to 1,000. Did you get the point? In case 1, you have a profit of 1,000. For calculating turnover, we have to take the absolute value of the profit and loss figure. So the turnover comes to around 1,000 rupees only. Nikunj, can I request you one thing? Can we do it like when you're doing futures? Let us do the like lot size as well. That might be much easier for people to understand कि turnover कितना होगा. 35,000 turnover होगा कि 35,000 into 25. You know, अगर वैसे करके करें तो ज़्यादा better रहेगा ना? Because the profit will be 1,000 points of the lot example, isn't it? Okay, if we take the lot size, because people should understand that the turnover will be a lot, मतलब lot के हिसाब से होगा exactly, isn't it? let's take the example of 5 lots. Profit will be 5,000, loss will be 5,000. Okay.
profit 5 lots, 1,000 per lot, profit will be 5,000, and the case 2, loss will be 5,000 rupees. But the absolute value of case 1 is 5,000. Also the case 2, the absolute value is 5,000. So the turnover in case of future is equal to the absolute value only. Is it clear? Yes. Okay. Now let's come to second case, options. If you buy a option for 100 and sell it for 200, buy for 100, sell it for 50, lot size. Let's calculate the profit. 5 into 100, 500 rupees. 5 into 50, 250 is the loss. Okay. But the absolute value of the profit and loss is 500 and 250. But for calculating the turnover in case of options, it is equal to the absolute value plus the sale value. Absolute value plus sale value. This is the main difference between calculating the turnover of futures and options. Options turnover is the absolute value plus the sale value, but in case of future, the turnover is only equal to the absolute value of the profit and loss that you get. Is it clear, or I need to go a bit on it again? Looks like clear. Is it clear? Yep. Okay, so by this we can calculate the turnover. So the turnover, what the turnover comes, you have to calculate it for the financial year. After calculating it for the financial year, then comes the requirement of tax audit. Whether you have to go for a tax audit or whether you have to just normally prepare a balance sheet and a profit and loss statement and file our returns. So if the turnover is more than 10 crores for the financial year, then we have to go for audit compulsorily. There is no if and but. But if the turnover is less than 10 crore, my advice is to just divide into two parts. First, if we have a loss, if we have the loss in the financial year and our turnover is less than 10 crores, my advice is to go for audit if the turnover is more than 1 crore. Because in this case, what we are saying, the assessing officer is not ready to carry forward our losses and are requiring them to go for audit. But if the turnover is less than 1 crore, there is absolute no requirement of audit. Just prepare the balance sheet and the profit and loss in the F&O trading income and file a ITR 3. But if you have a profit and your turnover is less than 1 crore, no requirement of audit. But if the turnover is more than 1 crore and up to 10 crores, it is your will whether you have to go for audit or not. You can go for audit or you cannot go for audit. It's your choice completely. Did everyone get this sheet? Or I will explain it again. Or any doubts? Hello, Vishal ji. Vishal ji. Haji, please go ahead. I think everyone is okay with this.
I think there is a query from. Can you bring the Excel sheet example again? That's a query right now. This one, no? Yeah. Yes. What's the doubt? They want to see this Excel sheet once again. I think this is a pretty new concept for everyone. So if you could just explain it. I think Nikunj, Bank Nifty ka option size, lot size is 25. I think if you use that, it might become a bit more easier for people to understand, because prices भी Bank Nifty के लग रहे हैं एक तरीके से. हाँ, prices Bank Nifty के हैं, lot हाँ, size मतलब वो 5 lots है. हाँ, नहीं, lot size ये absolute profit is per lot, is it? Yes. So Means in that case, जैसे आप for example अगर future आपने 30. बैंक निफ्टी बाय 35,000 में बाय करा और 36,000 में सेल करा, ठीक है. तो प्रॉफिट विल बी 1000 points. 1,000 into 25, Yes. right? So that's what I'm trying to say. So that becomes much easier for people to relate it with the number. Okay, no problem. तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 25,000. Absolute value will be 25,000 and a turnover will be 25,000. Right. But in the second case, you have a loss of 25,000. Absolute value is 25,000 only. Right. Your turnover is 25,000. Right. But in case of options, if you take 25 per lot, profit is around 2,500 rupees. Loss 25 into 50. Profit is around 2,500. So absolute value is also 2,500, and your turnover is equal to absolute value plus sale value. Sale value is lot size into sale price. Got the point? Perfect. That second case also, your loss is around 1,250. Absolute value is around 1,250, and your turnover is equal to absolute value plus sale value. You can just take a screenshot of it that you can refer and maybe ask your doubts again in the Telegram group. So Nikunj, there's one question that someone has asked. Yes. Can they get like a turnover from the broker? You are a trader as well, so can you advise on this? Only Zerodha provides the turnover. I have not seen any other broker providing the turnover with that clarity. Only Zerodha is providing the turnover with clarity. Right. And I think also your NSE sends an SMS, isn't it, every day? That's not the turnover. That's the value, total value you have traded. Okay. Right. True. Everyone's clear about the tax audit requirement, when you have to go for tax audit, when you have to not go to tax audit. Yeah, I think there's no question regarding that. I'm monitoring the questions as well. Yes. I'll let you know if there's anything that comes in. So there's one question that has come in. Sorry, if we do multiple transactions on the same day, how does the sale value is calculated? Actually, this turnover is calculated in 2 ways. One is trade wise, one is script wise. If we take the trade wise, our turnover will come more. And if we take script wise, our turnover will be little lesser than the trade wise. In trade wise, every trade we have to calculate this turnover. But if we go with script wise, for example, जैसे मैंने बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल में 10 बार ट्रेड लिया, तो मैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्लब करने के बाद मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के टर्नओवर निकाल रहा हूँ, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट वाइज. राइट. ट्रेड वाइज मींस मैं एक एक ट्रेड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर निकाल रहा हूँ. तो मेरा टर्नओवर देखा जाए तो ज्यादा निकलेगा इफ वी गो फॉर ट्रेड वाइज. अगर हम स्क्रिप्ट वाइज में जाएंगे हमारा टर्नओवर थोड़ा कम निकलेगा.
वो किसके ऊपर होता है? Is it on the CA to decide कि किस Yes, तरीके से yes. टर्नओवर कैलकुलेट करना है? Mostly CA decide. और जो लेना है मतलब एक कंटिन्यूटी में लेना है, ऐसे नहीं कि आज ट्रेड वाइज ले लिया, कल स्ट्रिप वाइज ले लिया. Right. So it is a continuity for a financial year. So let's say Yes, if I yes. have a CA who has made a mistake in that this and calculated my turnover to be very, very high Yes. just because of this. Yes. Next year, if I and I realize this, and then next year I come to someone else, someone like you who knows that we can do a script wise thing, Yes. then No problem. there is no issue, right? No problem. No problem. So in the financial year, when we are doing the audit, when we are doing the calculation, it has to be in one way only. Yes, one way only. And All the script, accounts. yeah. And what does the script mean? Does it mean that let's say Script means Bank Nifty ka call across all the months? Will it be one script? no. Yeah. One expiry, one script. One expiry, Okay. one strike price, one everything is one script. Right. If we go to next expiry, it is a second script. Right. Okay. So Mrinal Patel has a question, but it's on a strategy. We will come back on that later. Santosh is suggesting, can you do a more clarification on the tax implication in case of loss and turnover? Is when less it is than 1 crore. 1 crore. देखो मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ. आप इतना याद रखो, अगर टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, हमें ऑडिट में नहीं जाना है, या प्रॉफिट हो या लॉस हो. मोस्टली लॉस होने से क्या होता है, लोग बोलते हैं ऑडिट कराने के लिए, जो कि एज पर लॉ सही नहीं है. अगर टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए. इसमें क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस विल बी प्रिपेयर्ड एंड अ बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द F&O income. And then we have to go for ITR filing on ITR form 3, ITR 3 we have to file. But there is no requirement of audit if the turnover is less than 1 crore. So basically, in that case, I'm just trying to break down the steps. Yes. निकुंज, उस केस में एज अ सीए आप हमारे लिए सिर्फ बैलेंस शीट बना के टैक्स डायरेक्टली फाइल करेंगे. हाँ, विदाउट ऑडिट. विदाउट ऑडिट. तो आप हमसे ऑडिट भी नहीं लेंगे? नहीं. ओके. जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा और उसके अकॉर्डिंगली फाइलिंग होगा. इसमें ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं. राइट. प्रॉफिट हो या लॉस हो, मोस्टली लॉस केस में लोग बोलते हैं ऑडिट करने के लिए. राइट. बट आप वो कह रहे हो कि वो जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो संतोष यही कह रहे हैं कि संतोष ये कह रहे हैं कि अगर लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड होता है, बिकॉज लोग यही बोलते हैं कि अगर नहीं हो तो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, या तो नहीं. अगर आप टाइम से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, then the F&O loss can be carried forward for 8 years. आप 8 years तक वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. F&O का लॉस है तो ऐसे कोई ये नहीं है, पर आपको रिटर्न टाइम से फाइल करना पड़ेगा. That's the main requirement. राइट. सो इट्स वेरी सिंपल. 1 करोड़ से नीचे का अगर टर्नओवर है, एंड टर्नओवर आपका सीए ही कैलकुलेट करेगा. राइट. आपके ट्रेड लॉग से या जीरोधा के स्टेटमेंट से या किसी और ब्रोकर के स्टेटमेंट से. मोस्टली क्या होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकलता है सब ब्रोकर का, उसके थ्रू हमारा टर्नओवर निकल सकता है इजीली. राइट. ठीक है. एंड उसके ऊपर आप कह रहे हो कि दीज आर द प्रैक्टिकल वेज ऑफ हाउ you guys do it. Yes. So I think one thing which I've been having, I mean my understanding of this, and Nikunj also confirm karenge, Santosh, who's also CA, will confirm, is that there is a very gray area in terms of the entire how people are understanding this. There are a lot of many CAs जो ये चीजें समझता भी नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, या क्यों टर्नओवर कैलकुलेट करना है, या कैसे करना है. एम्प्लॉय टैक्स पे बहुत इश्यूज हो जाते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सीए हु इज प्रैक्टिसिंग इट, एंड उनसे ये चीज समझना. एंड दैट्स व्हाई निकुंज इज हियर. हाँ, यस. मतलब क्या होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है कैसे क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है.
अगर आप नॉर्मली जाते हो तो थोड़ा टर्नओवर निकालना, ये निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। So एक विक्रम का क्वेश्चन है, this is an example for trade wise, right? If on the same script, and the script wise turnover calculation would always be less. So if there were two trades on the same script, the average prices. So yes, Vikram, that is what I think Nikunj was talking about. It is depending upon the CA how he calculates the turnover, and that should be most script wise rather than trade wise. And script basically means one expiry. Yes, one strike price, one expiry. One strike price, one expiry, right? There is a question that is on range of audit fees a CA can charge. I think that again we will take it later. Once we can finish DM the me. Yeah. I think why is it advisable to go for audit above 2 crores even when it is not mandatory by law? I think this is a very important question. नहीं, Why should you go for audit even if it is not mandatory by law? If it is 1 crore, 2 crores. इसमें क्या है, जो 2 करोड़ का लिमिट है ना, ऑडिट अगर नहीं जाना है, आपको 2 करोड़ का 6% प्रॉफिट कंपल्सरी दिखाना पड़ेगा। Right. So anything above 1 crore turnover, if Yes. you have a loss, you have to file, you have to do audit anyways. Yes. If लेकिन you फॉर have a एग्जाम्पल, profit, if you have a profit, it has to be minimum 6% profit. And if it is not minimum 6% profit, you need to show it by audit that it is not. यस, एक्चुअली क्या है, 2 करोड़ ऑडिट नहीं करेंगे अगर हमें 2 करोड़ का 6% मिनिमम प्रॉफिट शो करेंगे। 2 करोड़ का 6% में 12 लाख। अगर आपका 2 करोड़ का टर्नओवर और 12 लाख से ज्यादा प्रॉफिट है, उसका एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 44 AD। आप उसके अंडर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसके भी आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे ऐसे नहीं कि हम आज ये फाइनेंशियल ईयर में 44 AD यूज किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं किया। अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो सेक्शन यूज नहीं कर सकते। राइट। तो वो क्या, वो सेक्शन 44 AD को यूज करने का भी ये है, जैसे एक बार आप शो करें तो वो शो करना पड़ेगा, वरना फिर आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक यूज नहीं कर सकते। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना ही अच्छा है। Okay, so एक और क्वेश्चन है, what will be the implication if I don't go for audit for turnover above 1 crores? इम्प्लीकेशंस तो ऐसे, जैसे आपका 1 करोड़ की ऊपर का टर्नओवर है, लेकिन जैसे मैंने 10 करोड़ का भी एक लिमिट बताया है। अगर आपका 10 करोड़ का ऊपर का टर्नओवर है और आपने ऑडिट नहीं किया तो आप पे फाइन लगेगा 1,50,000 रुपीज। राइट। ओके, एक और क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिखा है, अगर 44 AD में नहीं है तो भी क्या 6% गेन दिखाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर जो भी है, आप जस्ट नॉर्मल बैलेंस शीट और P&L बना के ITR 3 फाइल करिए, कोई जरूरी नहीं है। आप 44 AD सेक्शन में नहीं जाइए। ठीक है। देयर इज नो सच मैंडेट ऑफ 6%। वो बस एक सेक्शन में आप ले सकते हो 6%, अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है टर्नओवर। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आप 6% का गेन दिखा सकते हो, पर लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं, क्योंकि क्या टर्नओवर बहुत इजीली बढ़ जाता है ऑप्शंस के रिलेटिंग मोस्टली। राइट। तो उसका 6% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का पिटफॉल यही है कि टर्नओवर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, हम सेल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों के इंक्लूड करते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं। राइट। इसलिए टर्नओवर बहुत इजीली इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। ये जैसे इनका क्वेश्चन आया है, व्हाट शुड बी द टर्नओवर लेवल 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। इसके लिए मैंने आपको एक शीट बना के शो किया है। ये देखिए, एक शीट है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो कंपल्सरी ऑडिट में जाना है। अगर 10 करोड़ से कम है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर लॉस है तो ऑडिट जाइए,
अगर प्रॉफिट है तो आपका चॉइस है, ऑडिट जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो, बट इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑडिट इफ टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़. डिड यू गेट द पॉइंट? आप 1 करोड़ का लिमिट याद रखो, 1 करोड़ के ऊपर है तो आप ऑडिट कराने का सोचो, 1 करोड़ के नीचे है तो ऑडिट कराने का बिल्कुल मत सोचो. निकुंज, अगर हम आपने लिखा है कि प्रॉफिट इफ टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट. हाँ, अगर हाँ, 10 करोड़ में के ऊपर है तभी जाके हमको ऑडिट करना चाहिए. ठीक है, तो हाँ. अब ऑडिट के बाद क्या होता है, मतलब ऑडिट कर लिया, जो भी प्रॉफिट लॉस दिख गया, तो व्हाट विल द टैक्स एंड ऑल ऑन दैट? टैक्स एट द रेट 30% लगता है. बिजनेस इनकम, ये जो F&O ट्रेडिंग है बिजनेस इनकम माना जाता है, और टैक्स एट द रेट 30% लगता है. ओके. मीन्स वो जो would- स्लैब रेट होगा, स्लैब हाँ. रेट आप 5, 20, 30, हम्म, या ओके. न्यू में जाओगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ओके. और अगर लॉस है तो फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड कैरी होगा. फॉरवर्ड कर सकते हैं. यस, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years. निकुंज, क्वेश्चन इज एफएनओ के प्रॉफिट को फ्लैट 30% लगता है कि हमारे स्लैब का बेनिफिट हमको मिल सकता है? नहीं, स्लैब का बेनिफिट मिलेगा ना. ओके. एक्चुअली क्या है, मोस्टली सैलरीड लोग होते हैं और वो स्लैब 30% ही रहता है, इसलिए मैंने उधर मेंशन किया था. राइट, राइट. जस्ट नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा आपका, नॉर्मल इनकम के अकॉर्डिंगली. So let's assume कि मेरे मतलब मेरे वाइफ के मेरी my wife is non-salaried and she is doing the trading on her account. Trading is being done. तो फिर H for you जो भी आपका ट्रेडिंग इनकम रहेगा अप टू, जैसे कि 3 लाख तक स्लैब नहीं लगेगा, 3 to 5 देन एक 5 to 10% लगेगा. So all those tax slab. हाँ, 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 हाँ. Okay. जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उस हिसाब से आपका टैक्सेबल होगा. Okay. Okay. So एक किसी का क्वेश्चन आया है, and I think again a relevant question, again back on the Excel sheet. इसके एक स्ट्रैडल में कितना टर्नओवर लगेगा? एंड आई थिंक वो आपका जो एक्सेल शीट है ना, उसी में अगर आज का जो बैंक निफ्टी का एटीएम का प्राइस डालें तो ये आंसर हो ही जाएगा. एक सेकेंड. जैसे आप बाय वैल्यू और सेल वैल्यू बता दीजिए, हो जाएगा. हाँ, मैं वही कर रहा हूँ. I'm just trying to open up a yesterday's trade that could give a information on this. Just give me 1 minute. Okay, so एक तो हमारे एक स्ट्रैडल था हमारा, हम लोगों ने उसको अरे मेरा मोबाइल थोड़ा दिक्कत दे रहा है. Someone else, दीपंजन, एक मिनट ना, we take the right trade. दीपंजन एक एक ट्रेड बता दो. let's सीताराम say बता दो, आप बता दो. हाँ 37,700 का ही स्पॉट प्राइस चल रहा है. तो हाँ, वो बता दो ना. 37,700 का 525 में हमने सेल किया और 500 पे हमने बाई कर लिया. लेट्स से 500 पे बाय कर लिया. सी 525 में सेल किया और 500 में बाई किया, तो और हमको PE का? 25 पॉइंट्स का फायदा हुआ. और पीई में? अच्छा, पेयर का आप बोल रहे हो. ओके. हाँ, बिकॉज़ स्ट्रैडल का पूछ रहे हैं ना हम लोग. अच्छा, 37,700 का पुट अगर देखें तो पुट का 325 में सेल किया था और 287 पे बाय कर लिया. ये दोनों प्रॉफिट हो गया ना. हाँ, दोनों प्रॉफिट में. ठीक है. अच्छा ट्रेड है ना. सेल वैल्यू हमारा आ गया. ठीक है. अब आ गया प्रॉफिट. प्रॉफिट $625 एंड 950. टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 1575. एब्सोल्यूट वैल्यू 625 एंड 950. टर्नओवर हमारा सेल वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू. So our total turnover will be around 22,825. राइट. 22,825 के टर्नओवर पे प्रॉफिट 1575 विदाउट ब्रोकरेज.
So in short अगर बोला जाए कोई स्ट्रगल में मतलब just I'm trying to give a practical idea Yes. that 1x में अगर sorry 3-4x में अगर कोई कर रहा है कोई ट्रेडिंग जो कि बहुत लोग करते हैं who have 10 lakhs of capital easily they trade at least 10-15 lots and maybe 20 to 30 trades double the trade. So per Yes. day usually 1 लाख के ऊपर का आपका मतलब 10 lakhs कैपिटल में मैं बोल रहा हूँ इजीली आपका 1 लाख का टर्नओवर या 2 लाख का टर्नओवर हो जाएगा और within 20 days easily it will be 40 lakhs turnover or within 2-3 months it will go or 3-4 months it will go beyond 2 crores Yes, turnover. yes, yes, easily. तो फॉर 10 lakhs कैपिटल के लिए मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा कैपिटल होगा तो इट विल बी और इजी टू गेट द टर्नओवर मोर देन 2 crores और इवन ईयरली तो 50 लाख के कैपिटल में ईयरली 10 crore तो हो ही जाना चाहिए आपका बहुत इजीली. हाँ इजीली हो जाता है तो इसलिए मैंने बोला ना ऑप्शंस में टर्नओवर बहुत इजीली इंक्रीज होता है. हाँ इट्स फाइन. तो एंड टू समराइज की टैक्स जो लगेगा इफ यू आर इन प्रॉफिट then definitely it will be as per your tax slab. अगर loss हुआ तो फिर you can carry forward to up to 8 years. Yes, got it. Turnover calculation, Vikram का question है, is this turnover calculation per day? So turnover calculation is not per day, it is per script, which is basically an expiry and a strike. So like in this example, if someone is trading for a week, so that would just have one single turnover calculation, right? Overall profit. So what I mean कि उसपे फिर turnover usually कम हो जाएगा ना. If we assume 5 days का, we will just have one simple turnover calculation. ठीक है. I am asking like, is that the right way or do we need to calculate that every day? नहीं ये एवरी डे का नहीं है, ये एक्चुअली पर स्क्रिप्ट हमें कैलकुलेशन करना है और ये जो कैलकुलेशन होगा ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप नॉर्मली कैलकुलेट कर लोगे. पर स्क्रिप्ट वाइज आप P&L समरी निकालोगे उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरे साल के लिए. ऐसे पर डे ऐसे कुछ नहीं है, पर स्क्रिप्ट हमें कैलकुलेशन करना है. स्क्रिप्ट मीनिंग्स बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल, ये एक स्क्रिप्ट हुआ. फॉर एग्जाम्पल 13th एक्सपायरी 13th अप्रैल, बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल 13th अप्रैल का एक्सपायरी अगर हम लेंगे इसको हम एक स्क्रिप्ट मानेंगे. हाँ मतलब उसका जो हम बाय प्राइस देंगे that would be average buy price of all the trades and average sale price, right? Yes. ठीक है. I think Nikunj, let's continue. ठीक है. ऑडिट का आप ये शीट आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो. मोस्टली 2 चीज याद रखना, अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है ऑडिट नहीं करवाना है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट कर सकते हैं, लॉस है तो पक्का कराना है. ठीक है. और एक शायद क्वेश्चन आया है. कोई कह रहा है कि ट्रेडिंग में कैश एक्सपेंसेस 5% भी नहीं होता है, तो ये क्या है? इसके मैं समझ गया क्वेश्चन. ये क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ. क्या होता है, टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और हम लॉस जैसे क्या थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ. ऐसे अगर हम बाय लॉ जाएं तो 10 करोड़ के ऊपर ऑडिट करना जरूरी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो देखो तो असेसिंग ऑफिसर जो असेसिंग ऑफिसर है वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने में आगे दिक्कत क्रिएट कर सकता है. इसलिए हमें कंजर्वेटिव होके ऑडिट करके जाना चाहिए. असेसिंग ऑफिसर मींस इनकम टैक्स ऑफिसर. इज इट क्लियर? Now then last part is the carry forward of losses. जैसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो F&O लॉस है
वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल के लिए। जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, मतलब जो इंट्राडे हम ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी शेयर्स का, उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस बोला जाता है, और उसका लॉस सिर्फ 4 इयर्स के लिए ही कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका 8 इयर्स नहीं होगा, उसका सिर्फ 4 इयर्स होगा। और बाकी जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको भी हम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चंस और है तो वी कैन टेक। So a question is, a non-speculative loss can be adjusted against any other business income. या नॉन स्पेक्युलेटिव, हाँ हाँ, और कोई बिजनेस इनकम के साथ सेटअप हो सकता है। मेरे को एक Right. क्वेश्चन अलग, एक और क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक इवन बिफोर वी गो ऑन दिस, व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट कैन बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम? आप एक्सपेंसेस में इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो ब्रोकरेज वगैरह, एसटीटी चार्जेस वगैरह जो लगते हैं, टर्नओवर चार्जेस एंड ऑल, सब कंसीडर कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी And फिर जो हम लोग पर्स, तो एल्गो ट्रेडर्स हैं, क्या हुआ? हम लोग एल्गो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो हाँ, हम लोगों के पास 2-3 और खर्चे होते हैं। तो जैसे वन इज हमारा ट्रेडट्रॉन का जो प्लेटफॉर्म का फी होता है, हम्म, उसके लिए हमें एक प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस मिलता है। फिर जो क्रिएटर होते हैं वो भी चार्जिंग, मतलब आई एम, ऑल्दो आई एम अ क्रिएटर, बट आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये क्रिएटर के चार्जेस होते हैं, वो भी इनवॉइस के थ्रू रेज होता है एंड वो पे करते हैं। तो कैन दैट आल्सो बी सेट ऑफ? ये हम ले सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि Right. फॉर एग्जांपल टेक्निकल सर्विस वगैरह जो हम असिस्टेंट लेते हैं, उसके हाँ ऊपर हमें टीडीएस काटना मैंडेटरी है। हाँ, वो तो ट्रेडट्रॉन काटता है। हाँ, तो बस वो ट्रेडटॉन काट के रहना चाहिए, मतलब वो जो पार्ट है वो हाँ, रहना चाहिए कि मतलब वो टीडीएस ट्रेडट्रॉन काट के ही काटता है। पेमेंट हो रखा है। हाँ, वो ट्रेडट्रॉन काटता है। हाँ, अगर वो टीडीएस काट के पेमेंट हो रखा है हम्म। तो हम ले सकते हैं एज एक्सपेंस। इसके रिलेटिंग विशाल जी मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करके फिर कंफर्म कर दूंगा। आप तो वैसे ग्रुप पे हैं ही, तो आप बता ही सकते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। एक और क्वेश्चन है, कैन द नॉन स्पेकुलेटिव लॉस बी एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी इनकम? नहीं नहीं, बिजनेस लॉस सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है। नीलेश सैलरी जी बोल इनकम के साथ बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। नीलेश जी पूछ रहे हैं कि आई एम अ पर्सन हु हैज अ जॉब बट माय कंपनी इज पेइंग मी सैलरी एज अ प्रोफेशनल फी, नॉट एज अ सैलरी, so can this be adjusted with expenses of F&O loss profit? प्रोफेशनल फी में टीडीएस काट के, कंपनी टीडीएस काट के उनको पेमेंट करेगी। नीलेश, आपकी कंपनी आपको टीडीएस काट के कर रही है? हाँ, हाँ यस, तो हाँ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? बीटीएसटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर होगा कि स्पेकुलेटिव? बीटीएसटी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। स्पेकुलेटिव मींस आप जो सुबह खरीदे शाम को बेच के चले गए, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं। विक्रम पूछ रहे हैं कि आई जॉइन लास्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 21 टू मार्च 22, माय टर्नओवर वाज 3 करोड़, डू आई नीड टू गो फॉर ऑडिट? वेदर यू हैव अ लॉस और प्रॉफिट। विक्रम जी को ये क्वेश्चन है, लॉस है या प्रॉफिट? विक्रम जी ये बताइए, लॉस है या प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से। या विक्रम, सो द क्वेश्चन इज दैट आपके पास लॉस है या प्रॉफिट है? 3 करोड़ के टर्नओवर में प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो फिर आपका चॉइस है, आप ऑडिट पे जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। ठीक है। वो In which आपके AO ऊपर चॉइस है। in which AO will object all the transaction as digital transaction? For normal business I can understand, but for particular F&O business, does it make sense for an AO to object? Assessing officer के ऊपर क्वेश्चन है कि वो ऑब्जेक्ट
क्यों करेगा? सुनिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो केस स्क्रूटनी वगैरह आता है ना, उसमें तो पता नहीं है ना कि हम F&O ट्रेडिंग में सारा इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर जो स्क्रूटनी सेंड करता है वो तो ये नहीं देखता ना। अगर ज्यादा लॉस होता है तो स्क्रूटनी अपने आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, स्क्रूटनी ये करते हैं। तो अगर आपका स्क्रूटनी आ गया तो आपके ऊपर तो टेंशन बढ़ गया ना। और अगर स्क्रूटनी आया और आप असेसिंग ऑफिसर के साथ बातचीत करोगे ना, तब आपको आइडिया लगेगा वो क्या करेगा फिर। चाहे आपका सब कुछ ठीक हो, आज ये इंडिया है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। I have a question. Suppose I have profit. So, means at the time of ITR filing, so मुझे अपने थ्रू से ही जितना प्रॉफिट मुझे दिख रहा है मेरे ब्रोकर से, या फिर जो भी मुझे प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करके सोच रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे भर देना है ITR, करेक्ट? And if any questions will be asked to me, I should be ready with the proofs. यस। No other thing, सीताराम right? जी, सॉरी, वन रिक्वेस्ट सीताराम जी, संतोष को भी एक बार कैन प्लीज अनम्यूट हिम? I think anybody can unmute themselves. संतोष, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, yes, yes. Now I am able to do that. सो मेरा क्वेश्चन वही था कि कोई ऐसे प्रूफ दिखाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना ITR फाइल करते टाइम। मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अकॉर्डिंगली आई कैन फिल दैट ITR, करेक्ट? यस यस। ओके। संतोष, आप कुछ लिख रहे थे ना? हाँ, Nikunj, I was writing one thing is when we file the हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें we also select the business name and the category of the business, right? राइट। और so you were saying that AO will not know that which type of business is it, but I think this has been recently developed in the ITR forms wherein we report the category of the business or the हाँ, रिसेंटली HR नहीं, area ये of the चल business. रहा है। मतलब ये तो जब से ITR 3 आया है, हमें कैटेगरी ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना ही है, ठीक है Right. ना? So उसमें right. कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, so for F&O, what category people will select? Or for share trading, F&O trading is the same category. यस, एक्चुअली आप नॉर्मली देखा जाए ना, F&O ट्रेडिंग करके कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है इनकम टैक्स ITR में। आप कभी Okay. देखे हो कि F&O ट्रेडिंग एक बिजनेस हमें शो हुआ है? नहीं, so I also filed हाँ। returns. मैं यूजर के पर्सपेक्टिव से क्लैरिटी मांग रहा हूँ उससे। हाँ, तो हमें वो पर्टिकुलर F&O ट्रेडिंग का हेड अवेलेबल नहीं होता है, Okay. ठीक है ना? हमें एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, हमें Right. वो हेड में डाल के बिजनेस का हेड में डाल के वो हेड में हमें फाइल करना रहता है, Okay. Okay. ठीक है ना? तो Yeah. इसलिए मैंने बोला ये मेरा एडवाइस है, आप ऑडिट में जाओ। फिर एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे एक दो क्लाइंट्स के साथ हुआ है कि मतलब वो जो असेसिंग ऑफिसर है वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा ये दिखाया। तो मतलब ये मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको ऑडिट कराने में कुछ नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल आपका लॉस बड़ा है तो आगे वो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। Right. So will it be fair to say that for users clarity, अगर simple रखना है कि loss है तो उनको tax audit करवाना पड़ेगा? नहीं, For अगर simplicity. लॉस है और टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 पॉइंट्स। Okay. So, I think संतोष, सीताराम, मैं, हम तीनों को एक्चुअली एक चीज से तो बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिला होगा कि स्क्रिप्ट वाइज जो आप कह रहे हो उससे टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी कई स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिनमें काफी बार हम लोग मतलब डायनेमिक स्ट्रेटजीज हैं, कई बार थोड़े ज्यादा ट्रेड्स भी होते हैं। तो अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड हुआ है विद इन द वीक, तो वो पूरा स्ट्राइक प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज वन, राइट, वन स्क्रिप्ट, Right. है ना निकुंज? हाँ, राइट। वो एक स्क्रिप्ट में तो टर्नओवर थोड़ा कम हो सकता है उसके रिलेटेड। So basically, I just want to add one point. ये टर्नओवर ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिटिंग करना पड़ेगा बोल के एक हवा टाइप का बन गया था अभी, क्योंकि ये अल्गो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पुराना है नहीं। Recently very, I mean, so many new traders have joined
और उनको लग रहा था कि टैक्स ऑडिट पता नहीं क्या ही होगा, मतलब हम तो एक दो ट्रेड एक्स्ट्रा पड़ गए तो हम तो मतलब गए काम से। ऐसा कुछ है नहीं। टैक्स ऑडिट is kind of tax audit, and if any profit will be there, you have to pay the tax that each one of us know. If any loss will be there, then it can be carry forward, which most of us know. If anybody doesn't know, it will be a piece of new information for them. So tax audit, अगर turnover ज्यादा हो रहा है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। इट इज नॉट रॉन्ग और काइंड ऑफ डरने की कोई बात नहीं है वैसे। Right. And at the same time, I think what one is that ये करवाना पड़ेगा even for a high frequency strategy like a scalper. If it is scalping on the same strike price, it's not an issue. Okay, वो उससे क्या increase होगा? Yes, आपका SCT increase होगा, वो that is a thing that scalper would do. But turnover जो है, it will be calculated as per the rules and क्वांटिटी I भी think it's very इंक्रीज होगा ना, comfortable. But क्वांटिटी भी आपका Vishal, इंक्रीज होगा ना। हाँ, on the right, same right, script, the right. only benefit is कि आपका जो profit consider होता है that हाँ। will get reduced. यस यस आपका यस। overall received premium will get increased based on the number of trades. करेक्ट। एंड वन मोर थिंग इज, स्कल्पर हो या नॉर्मल स्ट्रडल हो, कितना भी कम ट्रेड ले लो, मुझे ये कैलकुलेशन के बाद जो भी मुझे दिखता है, मैं बोल रहा हूँ ना 10 लाख 20 लाख का भी अगर आपका कैपिटल हो तो वो 2-3 करोड़ के ऊपर जाएगा ही जाएगा आराम से, बहुत हाँ easy। बहुत इजीली। हाँ, तो ये ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि भाई साहब मैं स्कल्पर में 50 ट्रेड ले लिया आज तो मैं तो गया काम से। ऐसे इतना ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है वैसे। नहीं नहीं, इसमें कुछ डरने की ऐसे कुछ बात नहीं है। मोस्टली डिफरेंस इज, मतलब क्या होता है, अगर आप नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हो तो आपका कोई अटेस्टेशन नहीं है कोई भी एक सीए का, और टैक्स ऑडिट होता है तो बस वो अटेस्टेशन एक्स्ट्रा लगता है और कुछ नहीं होता है। काम जो उसमें भी है इसमें भी है। So I think ये निकुंज, क्या है? इससे तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो सीए का अटेस्टेशन है उसका कॉस्ट क्या है? बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड, और एक्चुअली ऑनेस्टली बताएं तो हर कोई अलग अलग कोड करता है। व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्हाट आर योर चार्जेस? अगर उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी अगर आप दे देंगे तो इट शुड हेल्प पीपल। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी अकाउंट्स यू हैव। जैसे क्या सिर्फ किसका अगर ज़ेरोधा का ही अकाउंट है उसमें क्या ज्यादा काम नहीं है तो आपका लो कॉस्ट में भी हो सकता है। अगर 4-5-6 अकाउंट हैं उसमें क्या वर्किंग्स बहुत बढ़ जाएंगे, उसमें चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना। उसका आइडिया क्या है चार्जेस का? मतलब लेट्स से कि वन अकाउंट अगर आपका ज़ेरोधा है तो 6,000 7,000 8,000 डिपेंडिंग अपॉन इट। पूरा ईयरली का चार्ज है ये, मतलब एक बार ही तो ऑडिटिंग होगा ना। हाँ, ये सिर्फ टैक्स ऑडिट का बोल रहा हूँ, आपका एक साल में एक बार। राइट। उसके बाद आईटीआर अलग है, और एक क्या होता है, टैक्स ऑडिट करवाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए रहता है। But still, for one account, 6,000 to 8,000. If somebody has a capital of 20-30 lakhs or 50 lakhs, tax audit 6-8 हजार पूरे साल में देने का मतलब उतना ज्यादा लोड भी नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ लोड नहीं है। वो क्या, बस लोग ने ये बना रखा है और क्या। हाँ, लोगों ने हवा बना रखा है कि हाँ। बहुत कुछ हो गया, मतलब आसमान भर जाएगा तुम्हारा टर्नओवर बढ़ेगा तो। मुझे आप मानोगे नहीं, मतलब आई यूज, मतलब पर्सनली आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑन ऑल, और कभी कभी तो लोग टारगेट टाइप का करते हैं, भाई तुमने इतना ट्रेड कैसे ले लिया आपके आल्गो ने? भाई ट्रेड आल्गो ने पैसा भी दिया है, एंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग प्रॉफिट यू हैव टू शेयर, यू हैव टू पे द इनकम टैक्स, दैट्स ऑल, इट इज एज सिंपल एज दैट। वही मैं विशाल से डिस्कस कर रहा था, हमें टर्नओवर कितना हो रहा है वो अभी नहीं देखना है, वो साल के एंड में देखना है और चेक करना है ऑडिट चाहिए या नहीं चाहिए। बीच में कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वैसे भी ऑडिट, वैसे भी एल्गो ही ट्रेड कर रहा है, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। वही तो, हमें टर्नओवर का एक साल तक सोचना नहीं है, एक साल खत्म होने के बाद सोचना है, देखना है क्या हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, अगर किसी का 10 लाख कैपिटल भी है एंड दे आर ट्रेडिंग फॉर द एंटायर ईयर, वो 10 करोड़ का टर्नओवर तो हो ही जाएगा। हाँ, बहुत इजीली, आराम से होगा, आराम से। और वो कोई भी लिमिटेड ट्रेड स्ट्रेटेजी भी आप उठा लो, आराम से 4-5 करोड़ का हो फिर भी जाएगा। हो जाएगा। मैंने तो देखे हैं 2-3 लाख से ट्रेड करते ही 2-3 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है साल में। बिल्कुल होगा। और क्या। सो आई मीन अगेन, जो भी आ रहा है, एनीवन हु इज ट्रेडिंग एफएनओ नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसमें टर्नओवर हाई होगा। एफएनओ रिस्की इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें लॉसेस भी होंगे, but there are provisions, there are people who are educated, they know what to do in terms of CAs who know what to do to make sure आपको उसको लॉस का भी कैरी ओवर कर सकते हो और प्रॉफिट का भी आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो।
expenses हाँ। को include करके। one good point what Nikunj has cited कि आपका जो टर्नओवर तो चलो आपके ट्रेडिंग के हिसाब से हो गया, बट योर ब्रोकर चार्जेस यू SGST, IGST 18% तो चार्ज करता ही है, STT चार्ज होता है, तो दोज टैक्सेस एंड ऑल व्हेन यू ऑडिट में भी आपको पता नहीं लग रहा होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने का आपको ITR फाइल करना होता है। व्हेन यू ऑडिट दैट विल आल्सो हेल्प यू कि सीए आपको बता देगा कि आपका इतना टैक्स बन रहा है। वो करेक्ट तो निको? हाँ, वो तो एडेड एडवांटेज होता ही है खुद निकुंज, फाइलिंग करने में। थोड़ा और उसको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं आप कि किस तरह की फीस को इंक्लूड कर सकते हैं इनटू दिस इनकम? आई मीन, ओके, ट्रेड्रॉन इज वन थिंग दैट मैंने आपको, मतलब हम लोगों ने आपको दिया है, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देंगे, एंड मे बी यू कैन जस्ट शेयर एडेंडम ऑन दिस इनवॉइस के ऊपर, बट व्हाट ऑल कॉस्ट कैन बी कंसीडर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट अ प्रॉफिट दैट वी हैव गॉट ऑन FNO? मेरा ट्रेड लेने में, बेचने में जितना खर्चा है सारा आपका ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस में आ जाए। परफेक्टली सेड, एग्जैक्टली मैं यही लाइन ऐड करना चाहता था। एज पर माय नॉलेज मैं हर कोई ऐसे जो भी क्रिएटर्स को दे रहा हूँ, जो भी ट्रेडरों को दे रहा हूँ, दोज आर ऑल माय ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। तो Yes. डेफिनेटली आई कैन क्लेम दैट, बिकॉज देखो बहुत सिंपल सा टर्म है कि मेरा अगर एक फिजिकल ऑफिस रहता, ऑफिस बन के मैं बिजनेस कर रहा होता, तो वहां पे मेरा नौकर, मतलब जो भी स्वीपर वगैरह होते थे, इलेक्ट्रिक बिल होता था, कुछ भी मैं बिजनेस में मेरा एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकता हूँ, राइट? So agar this is considered as a business income, then all those additional things, whatever needed expenses needed to get that business income, all those can be means claimed as a business expenses. Yes, right. And when we talk about these claims, for this we need a proper GST invoice, right? GST and TDS Yes, invoice. yes. Correct. हाँ, Document need to be necessary. डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। So someone is claiming that if I bought a laptop for trading, can I use that? Can I claim that as an expense? नहीं, ये एक्सपेंस क्रिएट नहीं होगा, इसमें आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो लैपटॉप पे। Because आपका business income की तरह कर रहे हो आप। हाँ, बिजनेस इनकम क्या होता है, लैपटॉप में एक फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि आप एक साल में उसको आप खरीद के ये नहीं कर पाओगे, डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगा वो। तो ये आपका एक लैपटॉप है, आपका एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट अगर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, राइट, उसको कैन आई एक्सपेंस दैट ऑफ? एक्चुअली क्या है, जो और इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, ये ट्रेडिंग भी होता है, पर्सनल एक्सपेंस भी होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक अलग कैलकुलेशन वगैरह भी रहता है। मतलब लेट्स से इफ आई एम सेटिंग अप अ स्मॉल कोवर्किंग स्पेस, यहाँ उस पे जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, राइट? Yes, right. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्विच टू फुल टाइम ट्रेडिंग करियर्स, बट वो घर पे नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू सेपरेट दैट थिंग, तो इवन दैट कैन बी कंसीडर्ड वो ऑफिस स्पेस का Yes, रेंट। yes. हाँ, इजीली ऑल एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम, बस आपके पास एविडेंस रहना चाहिए। और कुछ रहते हैं जिसमें आपको टीडीएस का रिक्वायरमेंट आता है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, वरना आप सारा एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। एक क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक आई वांटेड टू आस्क दिस एज वेल, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो या इनकम टैक्स अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट हो टैक्स पर्पस के लिए, व्हाट इज बेटर? और इफ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म और LLP, what do you suggest if someone is doing अच्छा खासा क्वांटिटी कर रहा है, how should they do that? I mean, they should do a private limited company के HUF करना चाहिए? देखिए, अगर आपका अकाउंट साइज इतना भी ज्यादा नहीं है तो इंडिविजुअल इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, हाँ, आपका टैक्सेशन कम हो जाता है, उसमें 25% वगैरह लगता है, लेकिन क्या होता है, कंपनी से पैसा निकालना बहुत आसान नहीं होता। पैसे निकालने के लिए भी आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। और क्या है, कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें क्या होता है, एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट का प्रोविजन लगता है, उसमें आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स पे करना ही पड़ेगा। हाँ, वो आगे जाके सेट ऑफ वगैरह हो के आप एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल आप जहां तक हैंडल कर सकते हो, इंडिविजुअल इज द बेस्ट। इंडिविजुअल के बाद पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद कंपनी, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में आप इजीली आप ये कर सकते हो, अपना पैसा निकाल सकते हो उससे। निकुंज, इजीली पैसा निकाल सकते हो का मतलब क्या है पार्टनरशिप फॉर्म में?
मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कोई लॉ के रिलेटिंग रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है, जस्ट आप पार्टनरशिप फर्म से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें एज अ ड्रॉइंग, और उसका कोई टैक्स में कहीं भी प्रोविजन नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। कुछ जस्ट तो एज अ होगा ड्रॉइंग। मतलब, जैसे कि मैं और मेरा एक पार्टनर, दो पार्टनर हैं मिलके ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम हमारा 1 करोड़ का मान लो कि प्रॉफिट हो गया एक साल में, तो हम ठीक है। कितना भी निकाल सकते हैं, हमें टैक्स नहीं देना हाँ हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, निकाल सकते हो। मतलब पार्टनरशिप फर्म में टैक्स पे करके उसके बाद कितना भी निकाल सकते हो, उस पर अच्छा कोई अच्छा लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब फार्म के ऑन बिहाफ में टैक्स पे करके कितना भी हाँ पर्सनल अकाउंट में निकाल सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। ओके। कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में कैसे होता है ये? प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसे कुछ नहीं होता, वो आपका नाम में ही अकाउंट है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसमें क्या, जैसे पार्टनरशिप फर्म करते हो वो एक अलग एंटिटी हो जाता है, और इंडिविजुअल में क्या, वो आपका खुद का ही एंटिटी है। उसमें क्या नॉर्मल स्लैब रेट लगेंगे, 5, 20, 30, और उसमें तो कोई विड्रॉल ऐसे। प्रोप्राइटरशिप फर्म में खाली एक ही फायदा है, जीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो शायद। इसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म में हाँ अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो मतलब। नहीं, अगर आपने जीएसटी पे किया है, हाँ। अगर आप वो प्रोप्राइटरशिप फर्म से कोई एक सर्विसेज देते हो, तो उसमें आप जीएसटी सेट ऑफ कर सकते हो। एज एन इंडिविजुअल जीएसटी सेट ऑफ नहीं कर सकते, राइट? इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जीएसटी क्या है, अगर आप कोई भी खर्चा जीएसटी करके, जीएसटी एडेड जीएसटी रहता है, वो एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो आप। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज का कोई सामान खरीदे, 18% जीएसटी, 118, तो आप एक्सपेंस 118 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 नहीं लेना है आप। नहीं, अगर मेरी एक फर्म है, हम्म ठीक है, और हम्म। उसमें मेरा इनपुट जीएसटी है ना आउटपुट जीएसटी है। हाँ हाँ, तो फिर वो आपको उसमें क्या होगा, आपको जो एक्सपेंस के केस में है वो आप 100 ही लोगे, और जो 18 है वो आपका जीएसटी में एज अ इनपुट शो होगा। राइट, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर वैसा है तो मतलब दैट दैट कैन हैपन इन ओनली अ पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कैन आल्सो हैपन इन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी हो सकता है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। ऐसा राइट, कोई ये नहीं है, एग्जैक्टली। सो सब में हो सकता है। जीएसटी कैन बी सेट ऑफ, एक्सपेंसेस कैन बी सेट ऑफ, बट वो जीएसटी सेट ऑफ करने के लिए आपका आउटपुट जीएसटी भी होना चाहिए। हाँ, मतलब इनपुट अगर हम जीएसटी नंबर लिए हैं, कुछ तो हाँ काम कर रहे होंगे ना। हाँ, और क्या है, लेकिन एफ एंड ट्रेडिंग वगैरह में क्या कोई जीएसटी नंबर ऐसा कुछ ये नहीं है, तो वो नेशनल जीएसटी मैंडेटरी नंबर। नहीं है। हाँ बट अगर आपने फर्म के नाम पे अकाउंट बनाया तो मैंडेटरी है ना। हाँ हाँ, तब तो मैंडेट। ठीक है, सौम्या ने पूछा ऑफिस रेंटल, तो वो दैट दैट कैन बी कंसिडर्ड, दैट हाँ, वाज ऑफिस डिस्कस्ड। रेंट होगा, अगर आपका रेंट 180 के ऊपर है, टीडीएस काटना पड़ेगा। I think most of the questions were now are related to calculation last year. तो महेंद्र सिंह ने कुछ जो लिखा है वो आई थिंक मोर ऑफ मैं कमेंट है। समझ गया। एक्चुअली क्या होगा, इसमें आपका कोई चॉइस नहीं है। 5 लाख पे आपका लॉस सेट ऑफ होगी, उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन होगा। पहले सेट ऑफ होगा 5 लाख माइनस 80 के, आपका 420 के, उसके बाद ही टैक्स कैलकुलेशन होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप सेट ऑफ कराना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है। सेट ऑफ इज मैंडेटरी। मृणाल का जो क्वेश्चन था कि टर्नओवर कितना होगा, तो आई थिंक वो भी सॉल्व हो गया व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रैडल, तो दैट आल्सो सॉर्टेड आउट। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? यस यस, टैक्स नेट प्रॉफिट पे देना है।
what all things we need to share with CA for audit, like डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मोस्टली क्या चाहिए? पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस समरी, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस समरी एंड लेजर अकाउंट, मोस्टली ये दो चीज चाहिए। एंड थर्ड इज द फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरी। निकुंज, another is अभी जो ये आधार और पैन का लिंकेज हो रहा है, यस, पैन हमारा ऑलरेडी हर ब्रोकर में लिंक्ड है, so ठीक है। anyways income tax is getting all the information of all the transactions that we are doing using any broker or any, let's say, financial transaction that we are doing on shares and investments, right? राइट। So ये जो लोगों को डर रहता है कि हमारा टैक्स टर्नओवर कितना हुआ, क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तो होता ही है अथॉरिटीज को, and that how does that imply in terms of let's say किसी ब्रोकर ने P&L या जो कैलकुलेशन है वो गलत आई, कहीं पे एरर है, क्योंकि वो एक्सेल शीट्स आती हैं, कहीं पे एरर है, so is it somewhere there's a record with the income tax as well, or this is only on basically a kind of self declaration that is there? नहीं, एक्चुअली क्या है, आजकल रिटर्न फाइल करते वक्त एक आता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। राइट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को हर वक्त चेक करिएगा, उसमें जितने सारे ट्रांजैक्शंस है ना, सब आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो एज अ सीए आप वो डाउनलोड करते हो हमारे बिहाफ पे? कंपलसरी है। ओके। मतलब और वो उसमें एक चेक पॉइंट है वो। तो अगर हम Annual कोई ट्रांजैक्शन मिस भी कर रहे हैं तो आप हमको बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, और ये राइट करेक्ट किया, F&O के ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं उसमें, लेकिन जो आप इक्विटी ट्रेडिंग वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। F&O का टर्नओवर वगैरह वो सब कुछ नहीं रहता। तो F&O टर्नओवर इन दैट केस इज स्टिल सेल्फ डिक्लेरेशन वाला थिंग? हाँ, वो हमको शो नहीं होता है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट से क्या शेयर कर रहे हैं। राइट। हमें सिर्फ आपका इक्विटी में आपने क्या ट्रेडिंग वगैरह किया है, म्यूचुअल फंड्स क्या परचेज किया है, वही शो होता है। राइट। नीलेश का क्वेश्चन था कि कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं आप कि कौन सा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं F&O प्रॉफिट में? जैसे आपने कंप्यूटर वगैरह खरीदा तो आप 60% वगैरह डेप्रिसिएशन ले सकते हो। Someone is asking कि टर्नओवर जो कैलकुलेशन होता है STT और ITR के लिए, उनका दोनों का टर्नओवर कैलकुलेशन अलग अलग होता है। हाँ, वो होगा, मैंने STT का मेरे को आइडिया नहीं है, ITR में मैंने आपको बता दिया। STT का टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, आई हैव नो आइडिया। Vishal bhai, I'll clarify here. STT is on the traded value, so both the turnovers are different. That's why we have you, Santosh. Hello. That's why we have you on this call. Yeah. ठीक है। I think Vikram has another question. is there any different deadline to file taxes? I think guys we'll हम लोगों ने निकुंज से आधे घंटे का टाइम लिया था. It's already been for more than 1.5 hours or 1 hour 15 minutes. So let us quickly wrap it up, and any other questions you can talk to him directly as well. And he's there on Strategy One group as well. And उसका नीलेश निकुंज का जो आईडी है, निकुंज आप अपना टेलीग्राम आईडी फोन नंबर एक बार सबको दिखा दीजिए so that they can note it as well. ये रहा मेरा फोन नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करिए या टेलीग्राम करिए। ठीक है, तो द क्वेश्चन अभी लास्ट ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक लेट्स क्लोज दिस एज वेल. ठीक है।
विक्रम का क्वेश्चन था कि is there a different deadline to file tax audit early Yes, or yes. टैक्स ऑडिट का लास्ट डेट होता है 30th सितंबर right? और आईटीआर फाइलिंग होता है 31st अक्टूबर. Right. Assets which we bring it on March, can we claim for this year? What? मतलब किसी ने अगर एसेट खरीदे हो मार्च में, can we claim हाँ. for this year? आप क्लेम कर सकते हो लेकिन आधा डिप्रेशन मिलेगा. अगर आपको 100 रुपए डिप्रेशन मिलने वाला था, आप 50 रुपीज ही क्लेम कर सकते हो अगर आप 3rd अक्टूबर के बाद खरीदते हो तो. Okay. I think इसको फिर end करते हैं अभी. Thanks a lot, Nikunj, to help us out with all these queries on income tax and for F&O traders and algo traders. Again, on behalf of everyone, I would like to really thank you for taking out time. वेलकम. Yeah. Sitaram ji Thanks, Nikunj. Yeah. and Santosh, thanks a lot for joining here as well. आप लोगों ने बहुत ही important angles यहाँ पे दिखाए और questions मतलब हम answer करने में help करी हमारी. Thanks a lot. वेलकम. Well, bye. Thanks. Thank you. Yeah. Okay. Okay. Bye. 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 बाय.